Okay, I think in the last lecture we were discussing about uh, unit load method and conjugate beam method. In this particular lecture we'll focus on Castigliano's theorem. Okay. Before we move to Castigliano's theorem, I want to cover a particular question that is asked, okay, regarding temperature. Okay, suppose you have a beam like this and you have T1 temperature at the bottom and T2 temperature at the top. It is given that your T1 is slightly greater than T2. If your T1 is larger than T2, then this bottom part will try to expand more as compared to your top part. So your beam will automatically take, okay, your beam will automatically take something this type of deflected shape, isn't it? Your bottom part is trying to expand more, okay, so it will have larger length as compared to your top part. So your top part will be something like this, and in the question it is asked you calculate this deflection. Okay. On the contrary, if the case is like this, suppose you have pin joint here, roller here, T1 here and T2 here. Okay. Suppose it is given that T1 is actually less than T2. That means top is having more temperature. Okay. In that case, what will happen? Your top part will expand more as compared to your bottom part, and this beam will actually hog. Okay, rather than sagging, there will be hogging. Okay. So this is the question that I want to address. You have to find the deflection due to this type of temperature variation across the depth. Okay. Now, suppose this is your beam, okay, or rather I'm showing you the entire section. Suppose this is your beam, this is your pin joint, this is your roller, okay, this is temperature T1 and temperature T2. I have already told you if I want to find, okay, if I want to find at some C point the deflection, okay, if I want to find deflection at C point, I write del C is equal to, from unit load method, small m capital M dx upon EI. Okay, to solve this temperature problem I will use the same formula. I'll slightly modify the formula in fact. Okay, you remember this formula, d square y by dx square is equal to m upon EI. Okay, this is from the double integration method that we did. Double integration method. Okay. If you look closely with this formula, I can write this formula like this: d by dx of dy by dx is equal to m upon EI. It's the same thing. Okay, I can write d square y by dx square like this. This dy by dx is nothing but your tan theta, or the slope, okay, of your deflected shape, and which is eventually equal to theta because your theta is small, so tan theta is nearly can be taken as theta. So I can write this expression as d theta by dx equal to m upon EI. Okay, if you look closely here, your m upon EI, okay, is nothing but d theta by dx. So I am replacing, okay, this m dx upon EI with d theta. Okay, so I can write it as m d theta. Is it okay? M d theta. Now, what about d theta? I want to evaluate d theta. Okay, you can see this derivation in any of the books. Okay, I am just giving you some hint. Okay, suppose I have taken a small section of length dx, okay, and this depth of the beam is given as capital D. Okay, here the temperature is T1 at the bottom and T2 at the top. This angle is nothing but d theta by 2. This depth I told you it is capital D. Okay, this is the extension of the beam. I am calling it dl by 2. Is it okay? This is also d theta by 2. Okay, now if I apply tan theta in this small red triangle that I am showing, okay, I am applying tan theta in this small red triangle, what will I get? Tan d theta by 2
is equal to dl by 2 divided by capital D. I've already told you that all the deflection and rotations are small, so I can write tan theta as theta. So I can write d theta by 2 is equal to dl by 2 into capital D. Cancel 2 from both sides, you will get d theta equal to dl upon D. Okay. Substitute with this value of d theta in your original deflection formula. Okay. Just go through the derivation, you don't have to remember the derivation. Delta C will become how much? M. D theta is replaced by this value, dl upon capital D. Okay. Now, if you know a little bit about thermal, okay, you should know that the extension dl upon L is given by alpha delta T. Okay. In this particular case, the length of our element is nothing but dx, isn't it? So I can write this dl as alpha del T dx. Substitute this value in our equation. I think I will obtain the final expression as m alpha delta T dx divided by capital D. Okay, this is your final expression. Okay, if you want, you can remember this formula because very frequently this question is asked again and again. Okay, but you can derive it also. Okay, I would suggest that you remember this formula in this form. Okay, and then you obviously know the value of dl is nothing but alpha del T dx, so you can, it will be a little easier to remember. Okay, let me show you the application of this formula with a question. Okay, suppose you are given with a beam, this is your pin joint, this is your roller, the top temperature is given as 80 degree Fahrenheit and the bottom as 160 degree Fahrenheit. This length of the beam is given as 10 meter and this depth is 250 mm. Alpha value is given to you 6.5 10 to the power minus 6 per degree Fahrenheit. Okay, find, question is find deflection at center of beam. Okay, find deflection at center of beam, यानी इस पॉइंट पे तुम्हें डिफ्लेक्शन निकालना है. आ जाओ फॉर्मूले पे. फॉर्मूला क्या कहता है? m अल्फा डेल्टा टी डी एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल डी. इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पता है. ठीक है, हमें अल्फा पता है, डेल्टा टी हमें पता है, टी वन माइनस टी टू, डी हमें पता है. ठीक है, खाली अगर हम ये स्मॉल m निकाल ले जाएं तो हमारा आंसर आ गया. ठीक है, स्मॉल m कैसे निकालते हैं हम लोग? स्मॉल m क्या होता है? मोमेंट. ओके, मोमेंट एट एनी सेक्शन x. यूनिट लोड मेथड में मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ. मोमेंट एट एनी सेक्शन x, ओके, जनरल सेक्शन x, बाय अप्लाइंग, ओके, बाय अप्लाइंग यूनिट लोड एट पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन इज टू बी फाउंड. जहाँ पे भी तुम्हें डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे तुम सीधा उठा के यूनिट लोड लगा दो. ठीक है, और मोमेंट का एक्सप्रेशन लिख लो. ठीक है, तो मैंने यूनिट लोड लगा दिया सेंटर पे, ये मैंने यूनिट लोड लिया, लगा दिया सेंटर पे. उसके बाद मैंने रिएक्शंस निकाल ली, 1/2 आ जाएंगी क्योंकि सेंटर पे लगा हुआ है. ठीक है, अब मैं, ठीक है, अब इसमें मैं इजी करने के लिए इस स्पैन में अलग एक्सप्रेशन आएगा, इस स्पैन में अलग एक्सप्रेशन आएगा. ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले स्पैन के लिए, ठीक है, मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ले रहा हूँ. ठीक है, और अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ. हाफ, ये डिस्टेंस तुम्हारी x है, तो मेरे ख्याल से जो मोमेंट आ जाएगा वो हाफ इंटू एक्स यानी x/2 आ जाएगा. ठीक है, इस बीम की बात करोगे, सेकेंड वाली बीम की, इस सेक्शन की, तो इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ले रहा हूँ. ध्यान से देखना है इसको. ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी ले सकते हो, पर एक बार तुमने ले लिया तो उसको पूरे क्वेश्चन में वहीं पे रखना, फिक्स रखना, और लिमिट्स इसकी ध्यान से रखना इंटीग्रेशन में. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ और फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ इस सेक्शन का, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? हाफ, ये वाली डिस्टेंस मेरी x हो जाएगी और ये मेरा फिर से x/2 ही आ जाएगा. ठीक है, मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया हमारे पास. तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ दो पार्ट्स में. पहले मैं ये पहले वाले पार्ट को इंटीग्रेट करूँगा, फिर मैं सेकंड वाले पार्ट को करूँगा. तो पहले वाले पार्ट की लिमिट हो गई 0 से 5, ये आधी डिस्टेंस 5 है. ठीक है, उसके बाद आएगा m है तुम्हारा x/2.
अल्फ़ा तुमको गिवन है, डेल्टा टी तुमको गिवन है, डी एक्स वैसा वैसा रख दिया, अपॉन कैपिटल डी भी तुमको गिवन है। सेकेंड वाले पार्ट का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ये सेकेंड वाले पार्ट का यहाँ का, ठीक है। अब इसकी लिमिट क्या होगी, x 0 से शुरू होगा और 5 पे ख़त्म होगा, ठीक है। लिमिट में केयरफुल रहना, सेकेंड वाले पार्ट की लिमिट भी 0 से 5 होगी, 5 से 10 मत लिखना, ठीक है, 5 से 10 गलत हो जाएगा अगर ऐसा कन्वेंशन मान रखा है तो। 0 से 5 ही होगी, x/2 अल्फ़ा डेल्टा टी डी एक्स अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। अल्फ़ा तुम्हें पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेल्टा टी T1 माइनस T2, डी तुम्हें दिया हुआ है, इंटीग्रेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट तुम खुद कर लेना, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 26.24 एम, ठीक है। सिंपल है, सीधा सीधा फॉर्मूला उठा के लगाना है। चलो, once you have understood this question, so we can move on to the next part. This is the last type of method that is available for calculating deflection of beam. It's called Castigliano's theorem. Okay, Castigliano's theorem. Some random points I want to tell you which are important from objective point of view. The first point is, it is also called, okay, virtual work method. Virtual work method यही है basically, ठीक है। Second, it is valid, okay, in elastic zone only. प्लास्टिक जोन में ये वैलिड नहीं है, हालांकि तुम अगर याद करो, इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि यूनिट लोड मेथड इज वैलिड इन प्लास्टिक जोन, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, इट इज़ वैलिड ओनली इन कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो वो अपना खुद का कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में ही इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं मेन चीज़ पर। कैस्टिग्लियानो की 2 थ्योरम है, कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम, कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। एक थ्योरम और है, कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम, कैस्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम। ये नंबरिंग याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव में नंबरिंग ही पूछ ली जाती है, कौन सी थ्योरम फर्स्ट है और कौन सी थ्योरम सेकंड है। पहली थ्योरम है डी यू अपॉन डी डेल्टा इज योर पी एंड डी यू अपॉन डी मोमेंट और अदर डी यू अपॉन डी थीटा, ठीक है, इज योर मोमेंट। ये तुम्हारी कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड थ्योरम है डी यू अपॉन डी पी इज योर डेल्टा एंड डी यू अपॉन डी एम इज योर, और अदर एम प्राइम इज योर थीटा, ठीक है। हमें तो डिफ्लेक्शन निकालना है डेल और थीटा, तो हमें ये सेकंड थ्योरम से मतलब है कैस्टिग्लियानो की, ठीक है। डी यू अपॉन डी पी इज डेल एंड डी यू अपॉन एम प्राइम इज थीटा। मोस्टली हम कैस्टिग्लियानो थ्योरम को फ्रेम्स और बीम्स पे यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्रेम्स और बीम्स के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। डेल्टा हमने कहा, डेल्टा हमारा है डी यू अपॉन डी पी, ठीक है। यू की बात मैं कर चुका हूँ जो हमने एनर्जी स्टार्ट किया था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि बेंडिंग में जो एनर्जी होती है उसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI, ठीक है। अगर तुम जाओगे पिछले लेक्चर में तो शायद वहाँ पे मैंने तुम्हें बता रखा है। तो अगर ये वाला एक्सप्रेशन मुझे निकालना है डी यू अपॉन डी पी, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इसी एक्सप्रेशन को, तो कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2m, फिर m का डिफ्रेंशिएशन डी एम अपॉन डी पी इंटू डी एक्स, और 2EI है मेरे ख्याल से, है ना, तो 2 कट जाएगा मेरे ख्याल से, तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन m डी एम अपॉन डी पी डी एक्स बाय EI, ठीक है। तो तुम्हारा डी यू बाई डी पी आ रहा है इंटीग्रल m डी एम बाई डी पी इंटू डी एक्स अपॉन EI, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। समझ गए होगे, ठीक। सिमिलरली अगर m निकालोगे, डी यू बाई डी एम प्राइम, या थीटा निकाल रहे हो जैसे, ये तुम्हारा डेल्टा है, अगर थीटा निकालोगे तो डी यू बाई डी एम प्राइम, तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा, डी एम पी की जगह एम प्राइम आ जाएगा ये वाला, ठीक है, इंटू डी एक्स अपॉन EI। ऐसे तुम थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। तो
इस तरीके से हम कैस्टिलियानो थ्योरम यूज़ करते हैं और डेल्टा और थीटा निकालते हैं, ठीक है। अब एक एक करके मैं तुम्हें समझाता हूँ कि पी और एम प्राइम कैसे लगाते हैं। वर्किंग अप्रोच क्या है हमारी इसकी, ठीक है। मान लो हमें कुछ बीम दे रखी है इसने, सिंपली सपोर्टेड बीम, कुछ लोडिंग है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि सी पॉइंट पे, ये कोई सी पॉइंट है, उस पर मुझे डिफ्लेक्शन और रोटेशन बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है और हमें सॉल्व करना है इसको कैस्टिलियानो थ्योरम से, कैस्टिलियानो थ्योरम से, ठीक है। तो कैस्टिलियानो का फॉर्मूला हमें पता है एम डी एम बाई डी पी, ठीक है, डी एक्स अपॉन ई आई। पहले डिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं, फिर रोटेशन की कर लेंगे। पी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन उठता है कि पी क्या है। पी तो कहीं है ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ लोडिंग दे रखी है, सी पॉइंट दे रखा है, पर पी तो कहीं है नहीं, ठीक है। पी एक इमेजिनरी लोड है, पी इज अ इमेजिनरी लोड, ठीक है। पी एक इमेजिनरी लोड है। तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, जो भी लोडिंग दी हुई है उसके अलावा जिस पॉइंट पे तुम्हें डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पर एक इमेजिनरी लोड पी लगा देना, ठीक है। उस पॉइंट पर एक इमेजिनरी लोड पी लगा देना और अब सारी कैलकुलेशंस करना, ठीक है। एक बार तुमने पी लगा दिया, उसके बाद तुम ये रिएक्शंस निकाल लेना, ठीक है। फिर एक जनरल सेक्शन एक्स पर मोमेंट लिख लेना, ठीक है। वही तुम्हारा मोमेंट एम होगा, ये वाला, ठीक है। अब ये जो एम होगा ये फंक्शन ऑफ पी होगा, तो उसको तुम डिफरेंशिएट कर लेना डी एम बाई डी पी, ठीक है। उसको उठा के यहाँ रख देना, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन तुम सॉल्व कर लेना पूरे स्पैन पर, ठीक है। और आखिरी में जाके, ठीक है, आखिरी में जाके जो भी तुम्हारा एक्सप्रेशन हो उसमें पी को उठा के ज़ीरो पुट कर देना, ठीक है। उस एक्सप्रेशन में पी आ रहा होगा, डेल तुम्हारा पी का फंक्शन आ रहा होगा, ठीक है। पर पी तो एक इमेजिनरी लोड था जो तुमने लगाया था सॉल्व करने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो वो लोड एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए लास्ट में उठा के उसे एकदम लास्ट स्टेप में पी को ज़ीरो कर देना, ठीक है। ये पूरी वर्किंग अप्रोच है तुम्हारी कैस्टिलियानो थ्योरम। अब मान लो यही चीज़ मुझे रोटेशन के लिए सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा। रोटेशन और डिफ्लेक्शन में इतना सा फ़र्क आता है कि जब भी तुम डिफ्लेक्शन निकालते हो तो तुम इस टाइप का पॉइंट लोड लगा देते हो, ठीक है। और जब भी रोटेशन निकालते हो तो इस टाइप का मोमेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। जिस भी पॉइंट पे तुम्हें रोटेशन निकालना है उस पॉइंट पे एक इमेजिनरी मोमेंट एम प्राइम लगा देना, ठीक है। और अब एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट लिख लेना। सेम प्रोसेस वहाँ से फिर ये फॉलो कर सकते हो। ये एम प्राइम का फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएट करके डी एम बाई डी एम प्राइम निकाल लेना और थीटा के एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ को पुट कर देना, ठीक है। डी एक्स अपॉन ई आई, लास्ट में जाके एम प्राइम को ज़ीरो पुट कर देना, तो तुमको थीटा मिल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया, वैसे सिंपल है एकदम, अगर समझ में तब भी नहीं आया तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये तुम्हारी कैंटिलीवर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोडिंग लगी हुई है, मान लो 3 किलोमीटर की, ठीक है। बी पॉइंट पे मुझे डिफ्लेक्शन बताओ कैस्टिलियानो थ्योरम से, ठीक है। बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन बताओ कैस्टिलियानो थ्योरम से। कैसे करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, एक इमेजिनरी लोड लगाओगे, ठीक है। सबसे पहला काम तुमको करना है पी नाम का इमेजिनरी लोड लगाओगे उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे तुम्हें डिफ्लेक्शन निकालना है। मुझे बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना था तो मैंने बी पॉइंट पे उठा के एक यूनिट पी नाम का इमेजिनरी लोड लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से सारी कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। बताओ ये रिएक्शन कितनी आ जाएगी, मेरे ख्याल से 3 प्लस पी आ जाएगी, ठीक है ना। 3 प्लस पी आ जाएगी। ये लेंथ तुमको दी हुई है, ये 5 है और ये भी 5 है, ठीक। मोमेंट कितना आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर मोमेंट, ये वाला मोमेंट आ जाएगा p इंटू 5, ठीक है, और 10 इंटू 3 यानी 30 प्लस 5p आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 30 प्लस 5 आ जाओ। इस इतने एरिया को मैं स्पैन 1 बोल रहा हूँ
और इतने एरिया को मैं स्पैन 2 बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों में मोमेंट का एक्सप्रेशन अलग अलग आएगा। तो फर्स्ट स्पैन में मैं मोमेंट लिख रहा हूँ, तो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, यहाँ 3 + p लगा हुआ है, एक मोमेंट लगा हुआ है 30 + 5p, ठीक है, और ये डिस्टेंस तुम्हारी x है। इस सेक्शन पे मुझे निकालना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, एक मोमेंट आ जाएगा ऐसा 30 + 5p का, है ना। उसके अलावा ये 3 + p भी मोमेंट देगा इसको इस डायरेक्शन में, तो 3 + p × x, तो नेट मोमेंट तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 + p × x माइनस 30 + 5p, ठीक है। ये तुम्हारा मोमेंट आ जाएगा फर्स्ट स्पैन में, ठीक है, ये वाले फर्स्ट स्पैन में जिसकी मैंने बात की है। सेकेंड स्पैन की बात कर लेते हैं। सेकेंड स्पैन के लिए मैं क्या करता हूँ, रादर देन यहाँ से लेने के लिए x मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ईजी पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ये 3 हो गया तुम्हारा, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी x हो गई, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे तुम्हारा कितना मोमेंट आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल M, ठीक है। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इतना मैंने x ले लिया, यहाँ से चालू करा है मैंने, तो ये 0 से x मैंने ले रखा है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये आ जाएगा 3x के बराबर मोमेंट आ जाएगा। तो सेकंड स्पैन में तुम्हारा मोमेंट है 3x, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होगे बात को। अब एकदम चीज़ें सिंपल हो गई, ठीक है। अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि वैल्यूज़ उठा के सीधा सीधा फॉर्मूले में डाल देना है। उससे पहले अच्छा रहेगा अगर हम, ये फर्स्ट स्पैन है, ये सेकंड स्पैन है, यहाँ मैं मोमेंट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मोमेंट है 3 + px माइनस 30 + 5p, ठीक है, और यहाँ पे मोमेंट है 3x। यहाँ में dm/dp भी निकाल लेते हैं, ऐसे टेबल बना लेते हैं छोटी सी, ठीक है, dm/dp भी निकाल लेते हैं। dm/dp अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे ख्याल से एक x आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो p के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में नहीं, p के रिस्पेक्ट में। तो ये अगर करोगे डिफ्रेंशिएट तो px बनेगा, p के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो अकेला x बचेगा यहाँ पे, और मेरे ख्याल से यहाँ से एक -5 बचेगा, तो x - 5 आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये प्योर x का फंक्शन है, इसको p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 दे देगा, क्योंकि इसमें p है ही नहीं एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा dm/dp। डेल्टा आप निकाल सकते हो मेरे ख्याल से, डेल्टा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा स्पैन 1 पे इंटीग्रेशन प्लस स्पैन 2 पे इंटीग्रेशन, डेल्टा आ जाएगा 0 से 5 m तुम्हारा है 3 + p x माइनस 30 + 5p, ठीक है, इंटू x - p m dm/dp इंटू dx डिवाइडेड बाई ei, प्लस फिर से 0 से 5 कर लो, ये 3x हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 0 dm/dp इंटू dx अपॉन ei। मेरे ख्याल से ये वाला एक्सप्रेशन तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाई हो गया इसमें। तो तुम्हें इतना बस सॉल्व करना है, ठीक है। इसको तुम इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में, और क्या करना, p को 0 पुट कर देना, ठीक है। अगर चाहो तो इसी पॉइंट पे p को 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। p को यहीं पे भी 0 पुट कर सकते हो, देखो मैं p को 0 पुट कर दे रहा हूँ पहले, 0 से 5 इंटीग्रेट करने से पहले ही पुट कर दो, ईजी पड़ेगा थोड़ा, माइनस 30, ठीक है, इंटू x dx अपॉन ei। अब तो ये सिंपल हो गया, x का फंक्शन है खाली, इसको सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से 312.5 अपॉन ei आ जाएगा, चेक कर लेना, मे भी यहाँ पे एरर हो सकती है, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 312.5 अपॉन ei, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कैस्टिग्लियानोस थ्योरम, बड़ा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफ्लेक्शन को यूज़ करेंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।